esteemed colleagues, dear students, invited guests, representatives of the press, ladies and gentlemen. It is with great pleasure and immense pride that I stand before you today to welcome you all to the opening ceremony of our Institute's 11th Foundation Day. The significant milestone fills us with gratitude as we reflect on our journey and look forward to the future with renewed enthusiasm and commitment. On behalf of the entire Institute, I welcome our distinguished guests whose presence here adds tremendous value to this occasion. We are deeply honored to have Professor Prabal Sen, a prominent academic leader whose contributions to the field of education are truly inspiring. We are equally delighted to welcome Sri Muktesh Parekh, Sri Dilokpal and Sri Gaurav Kumar, who have each made significant strides in their respective domains and have graciously accepted our invitation to share their journeys, insights with us today. I take this opportunity to acknowledge the relentless efforts of my colleagues whose dedication and hard work have been the driving force behind our Institute's success. Your unwavering commitment to excellence has brought us to where we are today, and a personal ovation from my side today. And I am confident that together, in future, or without me, you will continue to achieve great heights. To our invited guests, your support and encouragement have always been a cornerstone to our achievements. Your presence today is a testament to our continuing relationship we have built over the years, and we are truly grateful for your continued association. I would like to recognize the representatives of the press who play a crucial role in connecting us to the broader community. Your work helps amplify our achievements and share our stories with the world, and we are deeply appreciative. This Foundation Day is particularly significant as we recently adopted a new vision and committed ourselves to a new mission. These underscore our commitment to addressing the epistemic challenges of complex development processes. Our vision is to be the preferred destination for cross-functional and interdisciplinary education and research on policies, institutions, and practices in development management. We aim to advance development management knowledge and practices through collaborative research, education, and innovation, driving sustainable solutions that empower grassroots communities. Together, these principles emphasize our dedication to integrating various disciplines and functional fields to create knowledge of impactful solutions. We express our profound gratitude. I take this opportunity to convey our gratitude, our institutional gratitude, to another institute, that's the Institute of Rural Management, which was established in 1979 for its pioneering work in developing a curriculum in rural management. We have heavily drawn upon that curriculum, this innovative curriculum, and it has shaped many aspects of our program, notably, and it's a coincidence, and coincidentally, our esteemed guests of this opening session today have either taught or have had their education from this distinguished institute. I beseech our current students to draw inspiration from our guests. They were of your age when they were at Rema, starry-eyed and very young. They are gone on to distinguish themselves in contributing to building a strong economy and dispersing income and well-being. Among many, including a large number who are small and marginal, they are the best exponents of creativity
facilitating distributed growth, which is the very definition of development. They have all done this by innovating business models and harnessing technology to aid brick and mortar segments of society and carry stakeholders along the path of prosperity. I call upon my students in particular to join me in saluting our guests today and celebrating their achievements with a round of standing ovation. Thank you. As we embark on this celebratory day, let's take a moment to reflect on the values and principles that have guided us thus far. Our commitment to fostering an environment of learning, innovation and inclusivity remains as strong as ever. It is this commitment that will propel us forward as we continue to shape the leaders of tomorrow. In conclusion, I would like once again to extend my heartfelt welcome to all guests. Your presence here today is a source of great motivation and encouragement to all of us. Let us celebrate this Foundation Day with pride in our being and a shared vision for a brighter future on what we are going to become. Thank you. In fact, जब हमने इसकी परिकल्पना की तो विहार जो है शब्द इटसेल्फ जो है, अगर आप देखें तो जब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए वो कह गए हम लोग सब कुछ हार गए बिहार में आके यहाँ पे, इसलिए इससे विहार कहा गया. So what they have lost their egos, and that is how it. This is one. I do not know how true it is, but this is one anecdote we often heard about why it is called Bihar, and so. अब इस पे हमने काफ़ी कुछ चर्चा भी की, हमने कुछ सोचा भी, so we'd like to share with you some of the things. So first of all, honorable guest, esteemed policy makers and scholars, entrepreneurs, I think we have two big entrepreneurs here, and participants and people of Bihar. So very good morning to all of you and warm welcome to this event. On behalf of DMI fraternity, it is both a privilege and responsibility to stand before you to discuss, say a few words about this particular topic, why we have chosen, and it is very close to our hearts, and where we'll discuss about the future of Bihar. Before we'll proceed, I'd like to share with you some of the big data which we cull out from in fact, some of the secondary sources, and then, so this is what we thought. Let's try to pose straightway what we have seen in the Bihar vis-a-vis how we have performed with India. So if you look at this particular data, it is showing the share of our GDP, our gross domestic product, how much income we are generating in the Bihar economy. What we are talking about the Viksit Bihar, it is not only the economic growth which we are interested to know. It is about how can we make this state more dynamic, more resilient, more robust also in that way, so that it can weather a lot of storms. And that is where we can see the state level intervention or state led growth, which we have seen also have a lot of resource allocation problem. And that is where we have, in the first particular session, we discuss about how the entrepreneurship, how the self-individual who can generate employment, and then they can give a lot of leeway towards us. So I won't take much time. I already taken a lot of time. We are privileged to have with us some of the most accomplished minds in the field of entrepreneurship and innovation. We are honored to have distinguished speakers with us today. And to moderate this session, we have Professor Paval K. Sen as our session chair. Joining him on the panel are Mr. Muktesh Parikh, Finance Head, Aryadhan Financial Solutions Private Limited, Mr. Gaurav Kumar, CEO and Founder, UV Global, who is joining us online, and Mr. Nilotpal, Sagacia Growth Partners, LLP.
Let us extend our warmest welcome to them. Honorable Director, Development Management Institution, and Professor Surya Bhushan, the other distinguished faculty members of DMI, members of staff, and dear students. First of all, I would like to place on record my thanks and gratitude for inviting me to be amidst you, this learned assembly. I'm sure that I shall be able to take away a lot of things when I go back to my place of residence day after tomorrow. I have this hope because I know that all of you are carrying with you a lot of wisdom and perhaps experience too. So please don't be miser in sharing your knowledge with the members of the panel so that we go back enriched. Now, having said this by way of an introduction, I would also like to thank the management of DMI in general and the director, my old friend, a distinguished colleague at Institute of Rural Management, Anand, Professor Mishra, for choosing a topic for discussion today which is so relevant in the context of our strive to reach the level of development which every country looks forward to. I know, and I will have occasion to perhaps share with you my views as to how challenging this goal is to reach, to become Viksit Bharat. There is this clear definition of which country is a developed one and which country is not. Professor Surya Bhushan has given a glimpse of it, and I may have a few words to say on this later. Now, it is a very challenging task. We are a low middle income country today. And if a country has to be branded as a Viksit nation, a developed country, then it has to reach the level of high income, countries, which is far away from us. We are currently having, in terms of PPP income, our per capita income today hovers around $2,500. And a country to become a high nation level, to reach high level, high income level, one has to obtain a per capita income of $14,250. So it is very difficult, very challenging task. But perhaps it is good that we have set before us a difficult task so that we strive hard, we try to run, not walk, but run fast so that we reach this goal of becoming a developed nation by 2047. It's a difficult task for India as a whole. It's more difficult for Bihar. Bihar had a very rich background in terms of everything, including economic prosperity. But unfortunately, we are not at a very high level currently, so it's a very difficult task. I think the panelists here will throw some light on how Bihar and India can reach the level of development, and we can be described as a developed state or a developed country. Now, having said this, I would invite Mr. Gaurav Kumar, who is a distinguished entrepreneur, and he had also been a graduate of the Institute of Rural Management, Anand, where I had the pleasure of
being associated with the faculty, and I had the privilege of having a learned person like Professor D.P. Mishra as one of my distinguished colleagues. I know that, Gaurav, you have done a great deal in your own field of entrepreneurship, and we are very eagerly waiting to listen to you. What has been the, how has been the path that you have traversed so far, and what are your perspectives as to how our nation can become a developed entity? Started with co-founding a company long back in 2007, 7-8 when Northern Arc or IFMR Capital was coming into being. And that gave us an unprecedented vantage point of looking at financial services because 2008, 9, 10, the financial services ecosystem was still very nascent as far as credit is concerned. And that gave us a really good perspective of how the ecosystem was, where the ecosystem was really headed. And then 2017, I moved out to start an NBFC called Vivriti Capital, which I co-founded with Vineet. And 2019, we co-founded an asset management company. And then 2020, we founded UB. Now, if you look at 2-3 key takeaways, and as we are thinking of this space and to my mind, this entire startup to scale journey, I think where we see the entire power of credit today, to our mind, is largely one thing which can genuinely transform human capital, right? So this entire theme of access to finance, to my mind, has been very, very pivotal and instrumental. What we are seeing is tectonic shift on account of technology. So if you look at, if I just draw a parallel to the entire payment ecosystem, right? So between 2011 to 2017, you still had GPay, you had PhonePe, you had Paytm, all of these, payment apps which we today use and see, all of them existed, but nothing was scaling, right? And the payment ecosystem was still, I would say the digital payment ecosystem was still very nascent, right? And then 2017, here comes NPCI and makes the entire banking ecosystem interoperable. Right? And as the banking system became interoperable, right, you now see, where the payment ecosystem is, which meant that whether you were on PhonePe and I was on GPay, and whether you were holding an account with SBI and I was holding an account with ICICI, it did not matter, right? So we could move money, and we could move money with significant velocity, right? So I think one very important piece, at least we see next 10 to 15 years for Viksit Bharat, and what we are seeing is, unless and until we are seeing significant amount of financial product penetration at low cost, right? So what needs to happen, at least to our mind, there are 4 large sectoral themes which we are seeing. One, your cost of transaction on credit has to come down, right? So this, to my mind, next 10 years is going to be definitely a massive shift in financial services. And you will see a lot of things, the way we consume and engage with financial services product is going to rapidly change, right? And that's where our last 16, 17 years has been, and that's where we are committed for the next 15, 20 years. Professor Mishra, for having me here in presence of such a distinguished gathering. And the people from whom I am learned. So I think before, going to what Gaurav has said and, what is the vision for financial services and what will be the future, I'll just come to what Professor Surya was mentioning here. The picture that was shown here was actually got me worried. I never knew that, Bihar is lagging in so much of parameters, and it's 1/3, in terms of per capita income or other parameters. But this is where, entrepreneurship comes. Because where
there is the least development, you have the most opportunities. So I think in that respect, I think we are sitting on a, mines of diamond, which needs to be explored. It's just about, how do we discover them, how do we process them and bring forth to the world. So, when you are starting an enterprise, you have to see value. And that value, I think, we have been able to bring through those interventions, which was near farm gate, our business place. Second was financing. And then we thought that, though a smallholder farmer will come, get finance, but the real power to the farmer will come when he also has a choice to whom to sell. Because most of these farmers have access to only local traders. And local traders, he will not give him the full price. He will do various malpractices. He will ensure that, he has maximum profit at the cost of farmer. And, to enable that, we started the tech platform, which was Arya Tech Platforms, part of our tech stack. So basically, we were working as a platform which was arya.ag, and at the back end, we have 3 different kind of service structure. One is warehousing, second is financing, and third is the platform where buyers and sellers can come and transact with each other freely on the platform. And now this free transaction structure, this gives the power to the farmer to sell his produce, not to his immediate, the trader in his immediate vicinity, but he can sell it anywhere in the India. And that fetches him more bargaining power and a choice whom to sell. So basically, this was on the part of business modeling, that, how an entrepreneur thinks of creating value. When you are coming up with a business model, you not only see it in terms of, what the process changes you are doing, you also have to think from the customer's perspective. And that customer first approach should start from what is the convenience to the customer. Just look at the production data on potato. Bihar is one of the top 3 potato producing states in the country. Number 1 and 2 are UP and West Bengal. Together with Bihar, these 3 states produce almost 75% of country's potato. The processing grade potato that gets produced in the other 2 states has a market, local market. Bihar apparently doesn't have any processing grade potato being produced. And the second part, which which explains part of the problem, is the farm gate price for the potato that we get. It's possibly the lowest in the country today, despite having a reasonable quality. So that is one data point. The second data point I would like to pick on is and possibly all of you would know about it, is the procurement that Food Corporation of India does, or the State Food Corporation does in Bihar. While in states of Haryana and Punjab, the paddy and wheat production, the amount that Food Corporation of India procures, it's almost 80%. So 80% of what the farmers produce gets procured by Food Corporation of India. In Bihar, that percentage is less than 6%. And as a consequence, the traders from these 2 states actually come to Bihar, they buy it from the farmers, and then they go take it back to those states and sell it to Food Corporation of India for their storage. So clearly, it's a case of market failure. Both the cases that I told you
is, it actually underpins the phenomena of market failure that we witness in Bihar. Mr. Bijay Mahajan we had the good fortune of having him as a visitor in the campus. And he was an eminent development sector leader back then. I mean, even now he is an eminent leader. But at that point in time, we had very few people of his repute in the country. And we had the good fortune of interacting with him firsthand. And he had spent a considerable amount of time in Bihar while working for Pradhan. So I asked, and it was in 1996, 95, 96, he had set up BASICS. It was a group of institutions which were promoting livelihood, the financial solutions around livelihood. And he had set up his offices in Hyderabad. So I asked him, why didn't you do this in Bihar? And he said that, look, we were doing an experiment. And Bihar is certainly very close to his heart. But he said that, look, we were doing an experiment. And if this were to fail, this experiment was to fail, we wanted it to fail because of the market reasons, not for any other external reason. Now, in the context of that statement, and it was a very fair statement, and we all took it. Today, Bihar accounts for almost 18% of the overall microfinance market in the country. It's the largest market for microfinance with possibly the best repayment rate. But we also need to recognize, and I think Muktesh in his discussion very beautifully pointed out the need for business model innovation. So when we talk about impact, somewhere, from a vintage point of people who do not know about it adequately, it gives a sense of patronizing. And, that's not something which one would like to associate impact investment with. Because ultimately, anything which doesn't make economic sense, in the long run, it will not be able to sustain itself. It will not be able to scale up as a business model. So, in the impact sector, it is very important that while we are talking about the impact, we need to talk about the business model innovation as much as possible. And there are enough examples of business model innovation bringing the scale, bringing the impact, and on top of everything, the right kind of capital returns. One of the reasons why microfinance has been so successful is because the business model was very, very simplified. There was an inherent market demand, but the demand has always been there. When the solution came, when the product was brought in, the implementation was so simple, so easy to execute, that the scaling up happened very fast. And in the last 20 years, we know the kind of scale microfinance has attained in the country. Therefore, for any impact, sustainable impact to happen, it's very important that right kind of business model are brought in. And when I say bringing in business model, it doesn't operate in a static way. It requires, its very, very business environment is dynamic. And because it's dynamic, it requires the market solutions also to be dynamic. Now, let me put the context here. India accounts for 20% of the global spices production. But in the international trade, India accounts only for 6% of the trade, which means that we have a huge appetite for spices, nothing wrong in that. But that also means that a huge amount of quantity that we produce is simply not ready to be pushed into the international market. They will not be able to, buyers will not buy it. So what we need to do? We need to work at all levels across the value chain of the spices. And that's exactly what the company did. They started working with the farmers directly. Then they managed the whole logistics, storage. Then they started offering customized solution to their customers. And the customers who are based in developed world, countries like Canada, US, Europe, Japan, Korea, they were happy to pay the premium. Now,
working with only 7,000 farmers would not excite lots of people. But look at it in the context of the numbers. The company has a revenue of 260 crore. They have an EBITDA of about 15%. They are working only with 7,000 farmers so far. Now, look at the market that we are talking about. The Indian spice market, Indian overall spice market is worth 40,000 crore. Out of that, the export is only about 10,000 crore. In light of that, if we are able to bring right kind of capital, right kind of business model, right kind of business practices, logistics practices, imagine the kind of impact it will have on the overall ecosystem of spices in the country. And that's where I think it's important for us to learn. And that's where we have the learning for Bihar also. That we have seen examples of market failure in Bihar. We have seen very good number of successes also. Just that we don't talk much about those successes. There is need to talk about those successes. But more than talking about those successes, there is need to talk about right kind of business model application, bringing right kind of patient capital into Bihar, bringing right kind of ecosystem where the private capital can work without any encumbrances from any side. And I think if we are able to bring all these things together, possibly the next time when we talk about the problems in Bihar, we will be far more optimistic. Thank you. It's an honor to be here today to propose a vote of thanks on behalf of Development Management Institute, Patna. We are deeply grateful to our esteemed guests, Professor Prabal Sen, Mr. Muktesh Parikh, Mr. Nilotpal, and Mr. Gaurav Kumar for gracing us with their presence and delivering such thought-provoking insights to innovation and entrepreneurship. Our sincere thanks goes to them for sharing the valuable expertise with us today. We are also grateful to Director DMI, Professor Devi Prasad Mishra, for his unwavering support and guidance at all stages of the event. We appreciate the dedication of our organizing team who worked tirelessly to make this program a success, and not to forget the student volunteers who played a crucial role in ensuring smooth operations. We also thank the members of the print and electronic media for gracing this event. Finally, thanks to each and every one of you for attending and actively participating in today's discussion on the occasion of the 11th Foundation Day Symposium. Thank you once again. दोस्तों, स्वादिष्ट खाने के बाद अक्सर आंखों पर नींद का हल्का पर्दा छा ही जाता है, लेकिन यह समय है इस नींद को झटका देने का, क्योंकि यहाँ हम आराम करने नहीं बल्कि इस अद्भुत पलों को जीने आए हैं। तो चलिए एक बार सब हम अपनी कुर्सियों को सीधा बैठें, गहरी सांस लें और अपनी तालियों के आलस से दूर करें। माननीय निदेशक महोदय, विकास प्रबंधन संस्था, विशिष्ट कविगण, डीएमआई के संकाय सदस्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं अन्य विशिष्ट श्रोतागण, मैं सोनम सिंह और मैं आदर्श शंकर, हम सब आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं सभी सम्मानित कवियों एवं कवित्रियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मधुरम वंदनम काव्यम स्नेहम जीवन धारया सत्यमेव प्रियम वाक्यम कते सौंदर्य मक्षयम। अर्थात हमारे वाणी में मधुरता, जीवन में स्नेह, सत्यवादिता
और कवियों की गरिमा से हमारे जीवन का निरंतर प्रेरणा बनी रहे। पंचामृत अर्थात 5 अमृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। उसी प्रकार बिहार के 5 गरिमामयी भूखंड के 5 अमृत भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भाषाओं के प्रख्यात कवियों के समागम से हम हर्षित होंगे। कवि सम्मेलन के नाम जो रखल गेल है ना, बड़ी बहुत सोच विचार करके रखल गेल है। पंचामृत हिंदी के जो विकास होली है, वो जो बिहार के लोक भाषा है, लोक भाषा के बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के विकास में। हम तो गमछा उमछा लेके लिए देखते ही, जब बिहार के असल पहचान है तो एक अपना साथ रखना है। एगो रचना से शुरुआत करी थी, एक बाद धीरे धीरे हमने के पढ़ना है, सब लोग के सुनना है। और सब लोग बहुत सिद्धस्त कवि हत। मैथिली में अगर अपने अल्पना आनंद के सुनम, का सुकंठ गीतकार है अल्पना आनंद। अभी देश दुनिया में खूब पढ़े के मन से बुलावा आवी थे, और मैथिली और हिंदी दोनों भाषा में उनकर गीत बहुत सुंदर सुने के मिलत अपने लोग के। सुनील कुमार तंग भैया के परिचय तो ये कि देश विदेश के दौरा कर लेथिन है, छपरा सिवान के हथिन, आ कोनो देश हमरा न लगे कि बचल है। लगभग सब जगह कविता के नाम पर घूम लेथिन है। तो कविता ये भी सौभाग्य हमनी के देव है कि यायावरी के मौका देव है, या आनंद पूर्वक यायावरी के मौका, घूमे फिरे के मौका देव है। एगो रचना से हम शुरुआत करी थी, हाल तो हिंदी में, लेकिन मगही के मंच है तो मगहियों में पढ़ना जरूरी नहीं है सुबोध सर। तो सुनावी थी कि छक्का चौवा जारी रख, चौवा छक्का जारी रख, अपना के तू भारी रख, दिल्ली रह, दुबई रह, खुद के मगर बिहारी रख, खुद के मगर बिहारी रख। छक्का चौवा जारी रख, खुद के सब पर भारी रख, दिल्ली रह, दुबई रह, खुद के मगर बिहारी रख। आप प्राइवेट नौकरी ठीके है पर, प्राइवेट नौकरी खूब कहल जाइत नहीं आजकल कि जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर नहीं बनिए। ये सब तो खूब सुनने मिला है कि प्राइवेट नौकरी ठीके है पर फोकस में सरकारी रखो। वो डिमांड न छोड़ना है, वो मेहनत न छोड़ना है, वो कोशिश न छोड़ना है कि प्राइवेट नौकरी ठीके है पर फोकस में सरकारी रखा। हिंदी में लिखा और पढ़, हिंदी में लिखा और पढ़, पंचामृत भी जारी रखा। हिंदी में लिखा और पढ़, पंचामृत भी जारी रखा। पंचामृत है का, मगही है या वज्जी का है, भोजपुरी से यारी रखा। मगही है या वज्जी का है, भोजपुरी से यारी रखो। अंगी का मैथिली आपन छा जाए तैयारी रखो। अंगी का मैथिली आपन छा जाए तैयारी रखो। गोटे के प्रणाम करै छी। मिथिला से आयल छी त मैथिली में माँ सरस्वती के किछ शब्द पुष्प अर्पित करे के चाहे छी। सुनियो। कर जोड़ का पुकारै छी शारदा भवानी, मन में यहाँ विराजू है माई महारानी। कर जोड़ का पुकारै छी शारदा भवानी, मन में यहाँ विराजू है माई महारानी। आशीष दुई वाणी वीणा समान भका, आशीष दुई वाणी वीणा समान भका। आहाँ के गीत गावे जग जननी वीणा पानी, आहाँ के गीत गावे जग जननी वीणा पानी। माँ शारदा के पुनः पुनः प्रणाम करै छी। हमर जे मिथिला छै से केहन छै,
मिथिला के संस्कृति केहन छै एकटा मुक्तक अहाँ तक पहुँचाबै छी, सुनियौ। विद्यापति के गीत गार्गी के ज्ञान छी, हम मैथिली के मीठ मीठ लोक गान छी। विद्यापति के गीत गार्गी के गान छी, हम मैथिली के मीठ मीठ लोक गान छी। जे राजभवन छोड़ वनक चयन का सके, जे राजभवन छोड़ वनक चयन का सके, हम जानकी समान मान स्वाभिमान छी। हम जानकी समान मान स्वाभिमान छी। आ मातृशक्ति के उपस्थिति छै तऽ 4 लाइन प्रस्तुत करबाक चाहै छी अहाँ सबके लेल, सुनियौ। मिथिला के नारी केहन होइ छै। हम अर्चना के सबटा मंत्र गायब सकै छी, आ एके हाथ सँ धनुष उठायब सकै छी। ओहि मिथिला के ध्यान करू जतऽ शिव धनुष राखल छलै आ बड़का बड़का योद्धा सब न उठा सकलनि, मुदा माता जानकी अपन बाल्यावस्था में उ धनुष के एके हाथ से उठा लेलखिन। तब हम पढ़ै छी, हम अर्चना के सबटा मंत्र गायब सकै छी, आ एके हाथ सँ धनुष उठायब सकै छी। हमरा सजे बाजू तऽ तनी सुझ बुझ का, हमरा सजे बाजू तऽ कनी सुझ बुझ का, हम गीत आ गारी दुनू सुनायब सकै छी। हम गीत आ गारी दुनू सुनायब सकै छी। मिथिला में तऽ एहने होइ छै, गीतो गावल जाइ छै आ गाड़ियो पढ़ल जाइ छै। तऽ एकटा गीत पढ़ै छी। मिथिला में जे जखन शादी विवाहक समारोह के आयोजन होइत अछि तऽ बूढ़ पुरनिया हमर सबके दाई काकी सब आबै छथिन, आ हुनकर सबके एकेटा काज रहै छै पूरा समारोह के दौरान। एकेटा काज ओ सब करै छथिन, कनिया पर दृष्टि रखै छथिन। कनिया की करै छै, कोना खायब रहल अछि, कोना ओ हँसि रहल अछि, कानै छथिन कनिया कि नहि कानै छथिन, से सब देखबाक काज रहै छै हुनकर सबके। तऽ एकटा गीत आलोचना के गीत अछि, केना ओ सब आलोचना करै छथिन कनिया के, सुनियौ। कखनो ठिठियाबे छथ कखनो मुस्काबे छथ मुस्की चवनिया, ई आई काल्ह के कनिया देखू आई काल्ह के कनिया, ई आई काल्ह के कनिया देखू आई काल्ह के कनिया। आ केहन रहै छै आई काल्ह के कनिया, ट्रेंड फॉलो करे के ट्रेंड फॉलो करबाक गति में ओ सब भूल जाइ छथिन कि हमर संस्कृति केहन अछि। तऽ पढ़ै छी, सुनू पहिला बंद। घड़ी घड़ी ई टचअप करै छथ मेकअप सरियाबै छथ, एनाहिते होइ छै। घड़ी घड़ी ई टचअप करै छथ मेकअप सरियाबै छथ, हिनका पपनी पर कनको सन लोरो नहि आबै छन, नहीं जान किए ई तैयो वाटर प्रूफ करैलन मेकअप, हरदिया काजर सँ हिनका कहिया सँ छै ब्रेकअप, अपटन के ता देखते हिनका होबै लगे एलर्जी, सब किछ में असगरे देखा रहल छथ अपन मर्जी।
आ हद तो तब हो जाए छे जब डीजे पर संगीत बजा का, डीजे पर संगीत बजा का बन गेल छत इहो नचनिया। ई आई काल के कनिया देखू, आई काल के कनिया, ई आई काल के कनिया देखू, आई काल के कनिया। आयोजन के जो रंग है वो फीका न पड़े के चाहिए। अब हम ई कवि सम्मेलन के, ई लोक भाषा कविता समागम के दूसरा पुष्प से परिचय करावी थी। वो देखे में बड़ी छोट है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुन ले ना, वो कवि सम्मेलन के वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका हत कुंदन आनंद। कुंदन आनंद यहाँ मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के निदेशक महोदय सुमन बाबू से तब जानी थी, अपने तो सब सुनबे के लिए। कुंदन में इस देश के एक बड़ा गीतकार बने के सामर्थ्य है। हिंदी कवि सम्मेलन की दुनिया में कुंदन के एगो अपन तरह के धाक है अपन रचना शैली की वजह से। और जैसे कुंदन आनंद की एक और बड़ी बढ़िया विशेषता है, कंपटीशन कभी कभी हमारा कुंदन में चल जाए कि के जल्दी नया रचना लिख के देखावत। आई सबके साक्षी हमनी के कविगण दोस्त लोग उत्कर्ष आनंद भारत, कुमार रजत, नीलोत्पल भाई सब साक्षी रहलन है सब चीज के। कई बार हमने चैलेंज ले ली है, चुनौती एक दूसरा के दिली है कि जल्दी के लिख के दिखावे है। कुंदन आनंद के हम आमंत्रित करी थी। अंगिका भाषा में कुंदन कविता बढ़िया खूब सुनेतन, गीत सुनेतन, और एक बार जोरदार ताली बजाई। बड़ी लोग पर हमरा नजर पड़ी से परिचित चेहरा पर एक एक बार हम नाम ले लेम, वैसे तो बुलाम ना। हमरा पर्यटन विभाग के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दिखे थे रविशंकर उपाध्याय जी, हेरिटेज सोसाइटी से महानिदेशक बड़ भाई हमार अनंता सुदोष द्विवेदी जी, उधर नशर और प्रीति, सब ढेर चेहरा। और कई लोग ही कवि सम्मेलन, इस तरह के कवि सम्मेलन के पहला बार साक्षी बनी था। सब लोग के बहुत हमारा तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है और धन्यवाद है। आवा कुंदन खूब बढ़िया बढ़िया गीत सुनावा। एक बार ताली बजा के कुंदन के मन होता ऐसे। हाँ बढ़िया। प्रबंधन संस्थान में उपस्थित जते भी विद्वान जन छथिन, मंच पे सबके प्रणाम करै छियो। अंगिका भाषा के लेल हम यहाँ छियो आ तोरा सबके अंगिका भाषा में कुछ सुनेब। देखो कोरोना आइले, एक मिनट, तो कोरोना में की भले कि बहुत लोग के तो जीवन फंस गए, बहुत लोग चल गलखिन। आ हमर की भले कि हमर तो जीवन तो नहीं फंसले, लेकिन स्पीकर जो है कभी कभी फंस जाए। तो तू सब एकरा इग्नोर करियो आ शब्द पर गौर करियो। देखो चार पंक्ति सबसे पहले, चूँकि लोक भाषा कवि सम्मेलन है आ सब जानै छो कि लोक भाषा में जे अमृत है। मैं जखनी बच्चा कहे छे रे कनकिरवा गे दाय, तो उ जे स्वाद मिले छे आत्मा के, लगे छे कि मतलब वो ऐसन खुशी होय छे जकरा वो वर्णन के पार रहे छे। कोई मधेपुरा के छे तो ओकरा मधेपुरा वाली कन्या कहे के जे कंसेप्ट छे ई लोक भाषा में ही छे। तो ई अमृत चीज छे हमरा नजर में। देखो चार पंक्ति तोरा आर के सुनवे के प्रयास करे छियो कि लोक भाषा की छे। आम नहीं बतासा में और ने कोनो नासा में, अरे आम नहीं बतासा में, बतासा एगो मिठाई होइ छै गाँव घर में। अरे आम नहीं बतासा में और न कोनो नासा में, स्वाद उ कहूँ नहीं छै, अच्छै जे लोक भाषा में।
अरे स्वाद ऊ कहूँ नहीं छै, अरे छै जे लोक भाषा में, अरे छै जे लोक भाषा में। और देखो चारि पंक्ति तोरा आरके और सुनबै छियो कि लोक भाषा के की महत्व छै। सभी लोग जते छो यहाँ सबके जड़ गाँवे घर से जुड़ल रहे छै, हमरा पता छै। सभी लोग कहीं न कहीं गाँवे घर से जुड़ल छो। देखो खेत में बगानी में लोक भाषा कहाँ कहाँ छै? चंदन भैया तू सुनो। खेत में बगानी में सब चीज छै, लेकिन घर जेबो तो मैं यह कहता बउआ खैली रे, तखनी अगर मैं हिंदी में बात करे लगे तो लगे के घर में कोई दोसर महिला चले की। तो मैं जखनी कहे छे बउआ खैली रे, बउआ कितनो बड़ा अफसर हो, इसमें की मतलब छे? तब लगे छे कि नहीं अपने घर में लिए हन। अरे खेत में बगानी में, घर में दलानी में, खेत में बगानी में, घर में दलानी में, लोक भाषा गूंजे दिल के राजधानी में। कितनो इंग्लिश जान लो, कितनो कोनो भाषा जान लो, लेकिन गांव जेबो तो गांव गेलाक बाद जे छै अपन दोस्त यार चचा कक्का उ भाषा में दोस्त गायरो दै छै तो लगे बड़ा मीठा लगे छै सुनै में, लगे छै कि बा अपने लोग सब मतलब अपन लोग के बीच में चल एलिए हन। अब बाकी इंग्लिश फिंग्लिश तो बाहर में लोग झाड़ते रहे छै। अरे खेत में बगानी में, घर में दलानी में, लोक भाषा गूंजे दिल के राजधानी में। अरे लोक भाषा गूंजे दिल के राजधानी में। और देखो चार पंक्ति जी तखनी से तोरा सबके कहे दिलिया हन। आत्मा के भावई छै, जनन भैया आत्मा के भावई छै, जब कोई सुनाबई छै, आ सुन के लोक भाषा लगे, केना लगे छै? आ सुन के लोक भाषा लगे, अरे मैं जना बोलाबई छै। अंगिका में माँ के मैं कहल जाय छै। तो सुन के लोक भाषा लगे, अरे मैं जना बोलाबई छै, अरे मैं जना बोलाबई छै, अरे मैं जना बोलाबई छै। अब देखो ई प्रेम के महीना चल रहा है, कहे छै वैलेंटाइन नहीं? तो ई प्रेम के महीना चल रहा है, तो प्रेम में जे छै चोट खायल आशिक के अभी दर्द उफाइन उफाइन के आबै छै सब महीना में। हमरा लगे छै किया एना होइ छै। एहि पर चार पंक्ति देखो। सबके मददगार समझ लै छै हो, अजीत के बिहार समझ लै छै हो, सबके मददगार समझ लै छै हो, जीत के बिहार समझ लै छै हो, आ लोग भोला भाला हिया, अरे वासना के प्यार समझ लै छै हो। चंदन भैया के स्टेटस में हम देख लिया एगो फोटो, वो लगने रहथुन एगो आदमी कान में ना मोबाइल टांगने छै, ऊपर से खैनी खा रहल छै एकदम एना। ई कंसेप्ट तोरा बिहार में देखे के लिए मिलता कि आर खैनी पार खैनी,
सुनो, आ रेस्पॉन्स बीच में दिल करो कि हमरा लगे कि हाँ सुन रहल छो, नहीं तू आर एते ध्यान सुनो लगे छो, लगे पते नहीं चले छे कि सुन रहल छो कि नहीं सुन रहल छो। कि आर खैनी पार खैनी भै गेलो रे यार खैनी। सुनो, ओरिजिनल जो प्रेमी हो खैनी के, आर खैनी पार खैनी भै गेलो रे यार खैनी। हाँ। आ दे रहल छौ जिंदगी के, दे रहल छौ जिंदगी के रोजे रोजे धार खैनी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। दे रहल छौ, देखो कविता के जो 9 रस है ओहिमे हास्य करुण वीर रस के साथ साथ हास्य रस जो है ओकर भी अपन महत्व है। तो जेना एक बाग में अलग अलग तरह के फूल रहे छै तभिए वो बाग देखे में सुंदर लगे छै। तेनाहिते कविता के महफिल में अलग अलग रस होइ छै तो सार्थक होइ छै वो महफिल, नहीं? तो आर खैनी पार खैनी भै गेलो रे यार खैनी, दे रहल छौ जिंदगी के रोजे रोजे धार खैनी। आ काल्हि नहीं मिललो तो लगलो, काल्हि नहीं मिललो तो लगलो हो गेलो गद्दार खैनी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। काल्हि नहीं मिललो तो लगलो हो गेलो कटार खैनी, गद्दार खैनी। गद्दार खैनी। आ मांग के खलियो रे भैबा, मांग के खलियो रे भैबा एक नहीं 2 बार खैनी। बाबू कुंदन आनंद जी, बहुत क्षमता, असीम क्षमता कुंदन आनंद में है। हिंदी के गीत तो अपने लोग के फिर कभी मौका मिलत तो हम सुनाएम। कुंदन बहुत निष्णात कुशल हथिन ओकरा में, अद्भुत रेंज है उनकर कविता लिखे के। बड़ा आनंद आयल, खैनी पर कविता सुनाइए दिलन बचते बचाते। देखिए लोक भाषा की गजब खूबसूरती है, गजब शब्द सामर्थ्य था। इतना तो शब्द हमरा लगे कि संस्कृत में शब्द की क्षमता असीम है, लोक भाषा में भी असीम है। दर्द शब्द एगो है, सिंपल से ऐसी उठा के लगी थी दर्द। दर्द के देखिए आप कितना सटीक तरीके से बखान करे की क्षमता लोक भाषा में है। अब अगर कोई कही थे कि पिराई थे, दर्द के प्रकार देखी और दर्द के शब्द देखी। पिराई थे, वो अनुभव वही समझ सके जो पिराना समझे थे। मरोड़ई थे, कुछ एक बात कहे की जरूरत है ना, कहा मरोड़ी थे कहा मरोड़ई थे। डहकई थे, अकड़ई थे, तड़तड़ाई थे। एगो दर्द ये टभकई थे, एगो और है जी टीसई थे, एगो है दुखाई थे, और एगो और है ना बथई थे। तो ये क्षमता है लोक भाषा की। लोक भाषा की क्षमता और सामर्थ्य पे एक बार ताली बजाई। ये खाली हंसे के बात ना है, इस शब्दकोश के वृद्धि करे के भी बात है। देखिए मगध क्षेत्र से ही हमनी तो पढ़ली लिखली ठीक से। अब तो हमनी पास होली जो जमाना में बड़ी चोरी चल रही सर जी। हम भले चोरी करके पास के लिए कि ना के लिए ना बताएं, लेकिन चोरी तो अद्भुत चल रही। माने एक आदमी परीक्षा देवल गेल, 3-3 जनरेशन ओकरा चोरी करावे गेल है। हमरा साथे एगो लड़का परीक्षा देवे थलक, 10 बार से 10th के परीक्षा 10वां बोर्ड के देवे थल, लेकिन ओकरो काबिलियत देखिए पासे न करी थल। तो बाबूजी संकल्प करथिन कि अबरी बेटा के पास करा देना है। दोनों बाप बेटा दोनों मिलके पढ़ी थलन। रत बाबूजी अब बेटा दोनों साथे पढ़ी थत। बाबा पापा पहला के याद कर ले उत्तर। हाँ बेटा याद कर ले। परीक्षा चले लगल, परीक्षा हो गेल। सेंटर वही सेंटर पर हमरो हल परीक्षा का हम कहीं हमू देवी थली परीक्षा अपने मन से। अचानक से देखली कि खिड़किया तरफ हल्ला हुई थे। तो झांकली भाई कि कौन बात के हल्ला है। तो देखी कि बाप बेटा दोनों जूझ गेलन है। पापा तोरा कहलीवन हल्की राते पढ़ 8वां के मिलवा कि ना मिलवा आंसरवा। तो कहा कि ना बेटा हम खोजई थी। अब देखिए बाप भी बेचारा डरल, डराइए कि इतना बेटा खोजई थी मिल जाता कुछ देर में। तो यही चलते ने कहली बल कि रात 12 बजे तक पढ़।
रात 12 बजे तक पढ़ता हल तो 8वां के आंसर खोजे में देरी न होत हल, तब पढ़े लगी कहा बता ललटेन में माथा सटे लगा हुआ। तो ये युग भी हमने देख ली है पढ़ाई के, ये युग भी घुमा फिरा के जगह जगह, ऐसा खाली बिहार में न अली, उत्तर प्रदेश में दुबे छपरा की जब तो हम एक बार गेली कॉलेज में उधर, तो उधरों देख ली, उधर तो देख ली कि जैसे पोता के चोरी करावे दादा तो जाते हैं, दादी के चोरी करावे पोता भी जाते, तो वो और अद्भुत सामर्थ्य के जगह है। हंसी छिठोली चलित रहत, राग रंग संगीत चलित रहता। अभी बाबू कही थलन कुंदन बाबू वेलेंटाइन डे दुनिया के होते ही नसीब 7 दिन के, एगो हफ्ता नसीब है वेलेंटाइन के, लेकिन हमनी भारतीय के पूरा 3 महीना के बसंत ऋतु वेलेंटाइन सीजन नसीब है। इस सीजन सबके न मिला है। इस सीजन पर ऋतु संहार में कालिदास 38 गो श्लोक लिख दिल थी, अद्भुत श्लोक लिखलती है बसंत के, सुषमा के बसंत के आभा के वर्णन करे। हमरा जो ध्यान अभी थे एक श्लोक के, वो श्लोक हालांकि संस्कृत के टेक्स्ट है, देखिए का सुंदर वर्णन है ओकर कि द्रुमा सपुष्पा, द्रुमा सपुष्पा, पेड़ पौधे पुष्प से सुसज्जित हो गए हैं। पवन सुगंधी, हवाओं में एक अजीब सी खुशबू आ गई है। सलिलम सपद्मम, सरोवर में कमल खिल उठा है। स्त्रियः सकामा, पुरुष और स्त्री उद्दीपन के शिकार हो रहे हैं इन परिस्थितियों में। सुखा प्रदोषा, रात्रि बहुत सुखद हो गई है। दिवसाश्चरम्या, दिन भी उतने ही सुखद हैं। और एक तत्व वाक्य जो लिखल गई है कालिदास जी की ओर से, सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते, हे प्रिय, ये वसंत में सब कुछ सुंदर हो जाता है। ये वसंत के ये सामर्थ्य, वसंत की क्षमता है। वसंत या अदीब से हवा, हालांकि एगो मौसम यहू रहा है, कंफ्यूजन रहा है कि पंखा चलाई तो एक टांग कबल से बाहर रखी, का करी न करी, ये एगो अलगे तरह की मौसम के द्वंद्व है। चलिए अब कवि सम्मेलन के आगे गति देते हुए, कविता समागम के गति देते हुए हम आमंत्रित करी थी, हम शुरुए से पता ना आनंद शास्त्री जी वही कहित रह गई, आचार्य आनंद शास्त्री जी के। आ देखी ये कवि सम्मेलन के एगो और खुशबू है, एगो और विशेषता है। देखिए तो किनकर किनकर नाम में आनंद है। आनंद किशोर शास्त्री आनंद, अल्पना आनंद, कुंदन आनंद। अब ताली बजाएं, यहां आनंद ही आनंद। स्वागत है, आई आचार्य जी। अब बज्जिका में खूब बढ़िया बढ़िया गीत कविता सुनिए। प्रबंधन संस्थान सुमन, प्रबंधन संस्थान सुमन, चमकू खिल आकाश। हंसी के बाद बहुत हो गई कि प्रबंधन संस्थान सुमन, चमकू खिल आकाश, 11 अंक शुभांक है। प्रबंधन संस्थान सुमन, चमकू खिल आकाश, 11 अंक शुभांक है, प्रतिपल करू विकास। क्या बात है, तालियां एक बार जोरदार कम से कम हो। वाह 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 वाह। प्रबंधन संस्थान सुमन, चमकू खिलू आकाश, 11 अंक शुभांक है, प्रतिपल करू विकास। कि पंचामृत कर में धरू, कि पंचामृत कर में धरू, करू ग्रहण सुचिचित्त। पंचामृत कर में धरू, करू ग्रहण सुचिचित्त, नाम जगत रोशन करू, सार्थक फलित कवित। वाह 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 वाह। कि तीसी से गदरायल गेहूं गर्दन लगल मिलावे, कि तीसी से गदरायल गेहूं गर्दन लगल मिलावे, अरे जैसे रूठल राधा के हंस ब्रिज में कान मनावे।
कि तीसी से गदरायल गेहूं गर्दन लगल मिलावे, अरे जैसे रूठल राधा के हंस ब्रज में कान्ह मनावे, कि बदलल बदलल मन के मौसम, कि बदलल मन के मौसम ऐसन प्राण भेल गम गम, बदलल मन के मौसम ऐसन प्राण भेल गम गम, आम मुजरलक महुआ महकल भेलक हवा गरम, आम मुजरलक महुआ महकल भेलक हवा गरम, आम मुजरलक महुआ महकल भेलक हवा गरम। यही के साथ नायिका के विरह वेदना आ ओकरा संजोग में लाके हमरा बसंत सुनावे के रहे कि नायक भी आ गेल, जितना भी तर्पण रहे लेकिन नायक के आवे पड़ल, नायक आ गेल। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सभा इ नवोदित कवयित्री अनमोल के अनमोल ताली जीवन के मिले, सबसे बढ़िया ताली मिले। अब मगही में कुछ उत्कृष्ट रचना अनमोल से सुनी। आवा अनमोल सुना। शब्दों के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के वंदन करो हिए। ई पावन पुनीत मंच से मंच पर उपस्थित सभी कविवर के हार्दिक प्रणाम, हार्दिक आभार व्यक्त करो हिए और आप सभी अतिथिगण के श्रोतागण के हार्दिक अभिवादन करो हिए। वाह वाह बहुत। हम वहाँ से बैठ के पूरा सदन में नज़र घुमा रहलिए हैं तो हमरा गिनल चुनल लड़कियन के संख्या मिलले। और सबसे पहले तो मैडम आपके बहुत बहुत आभार, आपके पास से बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव वाइब आ रहे हैं आपके देख के। एक बार जोरदार ताली मैडम के लिए बजाइए। अरे बाप रे बाप। ए अनमोल, तू ताली तो ले ले है ढेर बढ़िया, लेकिन कुछ ईर्ष्या भी ले ले है अब की। ये बात तू समझ जा। बारी बारी, अच्छा एक चाल है, ये बारी बारी से देखिए सब कोई के कहता कि वहाँ से बहुत बढ़िया वाइब्स आवे थे। तो ये कवि के एगो ताली लेवे के तरीका है। बढ़िया से आशीर्वाद दियो और खूब बढ़िया से पढ़ा अनमोल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम सोच के नहीं लिए कि पढ़बे, लेकिन फिर भी हम पढ़ दिए। बेटियन के इतना संख्या कम काहे है, काहे नहीं समान संख्या में यहाँ पर महिला मौजूद हैं। तो बस एगो बेटी हकिया ई लगी न, आप सबके संख्या कम है ई लगी पढ़ रही हैं कि बेटियों के देखा तू बेटा बराबर। आजकल बेटी की नहीं कर सकले हैं कि बेटियों के देखा तू बेटा बराबर, बेटियों के देखा तू बेटा बराबर, तबे न होतई भारत उजागर। कैसे उभरते उड़ान आसमान में, यदि छोड़बो ने पंख तो रखबो दबाकर। सुनथिन कि बेटी की घर के शोपीस होबो है, बेटी की घर के शोपीस होबो है, जे रखो हो घारा में ओकरा सजा के। बेटवा से कम नहीं करतो तरक्की, देखो तो तनी अपन बेटी पढ़ा के। अब बेटी की नहीं कर रहे हैं कि बेटी तो छुओ है गगन आसमान, बेटी तो छुओ है गगन आसमान, बेटी की इतना तो कम नहीं आके। अजी बेटी तो देवी के रूप होबो है, तो देवी के रखबो सबसे बचा के। देवी तो सबके सबसे रक्षा करोखिन, हम सब देविये के रक्षा करे में लगल हिए कि ओकर जन्म ने अवतार होले हैं दुनिया भर के तारे ले। ओकर जन्म ने अवतार होले हैं दुनिया भर के तारे ले। काहे हो लुहाटी रख ले किस्मत बेटी के जारे ले। दरिंदा से उडर जाए ई नहीं सिखा हो, हाथ में त्रिशूल दे के चंडी बना हो। यहाँ उपस्थित सब ऐसा शख्स कोई नहीं होथिन जे कि दादी के किरदार से अपरिचित होथिन। और दादी एगो ऐसा किरदार है जो सबके पसंद हो, सबके पसंदीदा शख्स, सबके पसंदीदा किरदार दादी। तो एक मुक्तक रखो ये दादी के लिए, और बाद हम अपन स्थान ले लेबै कि सहज सुवासित और सुकोमल छुअन है हमर दादी के। सहज सुवासित और सुकोमल छुअन है हमर दादी के, मिश्री जैसन घोल सुभाषित कहन है हमर दादी के। त्याग के मूरत प्रेम के धारा ममता में आंचल हलखिन, आबाद रहिए हम सदियों तक, इस सपन है हमर दादी के। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतना ठहाका, इतना खुशी देख करके हमनी कवि लोग के भी बहुत खुशी मिले है। कहल गेली है सुरेंद्र शर्मा जी देश के बढ़न हास्य कवि हती, बहुत चर्चित हास्य कवि हती।
वो गलती है कि जे लोग हंसावे के काम दूसरा लोग के करहत, चेहरा पर मुस्कान बांटहत, एक तरह से वो लोग देवता के पूजा करहत। और दूसरा लाइन इहो कहती कि दूसरा के हंसाना पूजा करे जैसन है। वो लोग कोई हंसावित हत तो पूजा तो करीते हत, जे लोग हंसावित हत देवकता उनका लगी पूजा करहत। तो ये बड़ा बड़का लाइन कह देती है। अब हम कवि सम्मेलन के जे कहा है शीश मुकुट, एक परंपरा में कहल गेल है गीत कलश, और कार्यक्रम के ई कवि सम्मेलन के सत्र के अघोषित अध्यक्ष, एक मतलब ये न समझम कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग हत, सबसे टाइट आदमी हत तो कवि सम्मेलन अभी हो। अब उनका तक हम लोगों के सुनना है। एक रचना हम और सुना दे, वही बड़ी मन से लिख ले हली तो हम लोग संवरण न कर पावी थी सुनावे के। आदत ऐसा सूत्रधार एंकर लोग के आदत रहे है, वो अपना जब तक अपन सब न सुने तब तक माइक न थमा सका दूसरा के। रविशंकर बाबू खूब बढ़िया से जानी थी। रविशंकर उपाध्याय जी हद बैठल, इनकर परिचय फिर हम ई चलते करावी थी कि बिहार में बिहारी खान पान के संस्कृति पर इनकर खूब सुंदर एगो किताब आयल है। खाहत सब कोई, लिखत कोई कोई, तो खाया वाला काम तो सब लोग कर लेवत, रविशंकर भाई लिखे वाला काम कर लेती है। रविशंकर बाबू एक बार खड़ा हुआ था, आज चेहरा दिखाऊं सब आदमी के, कितना बढ़िया सुंदर आदमी, आ किताबों खूब सुंदर। तो पर्यटन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी हती, पियारू हती, 3-4 बार कहली भाई किताबवा दे दी है। एक रचना सुनावी थी, ओकर बाद फिर सीधा सीधा सुनील कुमार तंग भैया से, इन तंग इनायतपुरी जिसन बताओ कि नाम खाली तंग है, रहत आनंदे में ही, तंग उंग न रहती, दूसरा के चंग पतंग कर देथुन, तो ऐसा आदमी हती। सुनिए एगो, गला तो बहुत साथ न देवी थे, फिर भी सब लोग सुर में गावे तो हम महिषो सुर में गा लेवी थी थोड़ा सा। सुनिए कि बहुत दिन रह गेला बबुआ शहर में, चलब तू भी अपन गांव घर में। बहुत दिन रह गेला बबुआ शहर में, चल अब तू भी अपन गांव घर में। खुशी के शामियाना छोड़ करके, खुशी के सामियाना छोड़ करके, कहाँ फसला उदासी के भंवर में। बहुत दिन रह गेला भुला के गांव के कोमल कहानी। का सरलता बोध हलै, का सरल आदमी रहल थी पहले। भुला के गांव के कोमल कहानी, छतीसा कर रहल है तू शहर में। चलो अब तू भी आपन गांव घर में। बहुत दिन रह गेला बबुआ शहर में। एक और बंद कर छोटा सा सुना के। अकेले माँ पिता के छोड़ करके, अकेले माँ पिता के छोड़ करके, जिंदगी जी रहल हा तू जहर में। यहाँ पानी खरीद के पी रहल हा, वहाँ पानी उदासे नहर में। बहुत दिन रह गेला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के बाद हम समझ गए कि फटल कवि सम्मेलन से भी गला फटल गला से भी कवि सम्मेलन के सार्थकता हो सके है। अपने लोग बहुत बढ़िया से सुन ली। आज सुनील भैया परिचय में अब का कहीं बहुत देश घुमैली हम, 29-30 गो तो घुमा दिलिए। अब 31वां हम ना घुमाए, आऊँ और आ करके
कवि सम्मेलन के संसार में, कविता के संसार में यात्रा कराऊं। एक बार जोरदार ताली। हास्य के हिमालय के नाम, इनका कविता सुनी, रचना सुनी, अद्भुत अद्भुत रचना। आए भैया। सबसे पहले हम रउआ लोग के भोजपुरिया प्रणाम करतनी। कौनो बड़का आयोजन होखे चाहे छोटका आयोजन होखे, ओमे कवि सम्मेलन जरूर जोड़ल जाला। हमरे ई बात ना बुझत रहनी जे आखिर प्रबंधन समिति ये सब आयोजन के बीचे कवि सम्मेलन जोड़लस काहे। तो हमरा एगो किस्सा याद पड़ल कि गंगा के किनार पर एक आदमी खड़ा होके कहत रहे, ये गंगा मैया तहार पानी तो बड़ा मीठ होला, लेकिन तू जाके समुंदर के खारा पानी में मिल जालू, एकर फायदा का बा। बेर बेर यह बात पूछे तो गंगा मैया अवतरित भैली आ कहली जे तू नइखा जानत, हम तय कैले बानी कि जब ले समुंदर के पानी मीठ ना हो जाए ओकरा के मीठ पानी पियावत रहे, कि जब तक आदमी के आदमी से ना जोड़ देहल जाए आ पूरा दुनिया के तमाम लोग एक दूसरा से मोहब्बत ना करे लगे, नफरत एकदम उड़ान आ जाओ, तब तक कवि सम्मेलन के जरूरत बा। आ एकरा खातिर हम प्रबंधन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद देता कि वो दिन राती खां सुनसान बीच सड़क पर, वो दिन राती खां सुनसान बीच सड़क पर, सुनसान बीच सड़क पर एगो पत्थल आ पत्थल के ऊपर जरत लालटेन, आ लालटेन के लगे खड़ा एगो आदमी के देख के हम चकरा गईनी। तब पूछनी, ए भाई बीच सड़क पर सुनसान में लालटेन काहे रखल बा? तो कहलस एकरा खातिर कि अन्हारा में पथालवा से केहू के चोट ना लागे। हम फिर पूछनी, तो ई पथलवे काहे के रखल बा? उ तनी टैट बोलल, लौकत नहीं खे, ललटेनिया रखे खातिर। बहुत अच्छा। हमरा हंसी आ गई आ मुंह से निकलल, और जब हाल बा तो तू एजा का करता रह? कहलस तोहरे जैसन लोग के समझावतानी। हम फिर पूछनी, तहार तो बातें नइखे बुझा, तू खिसिया के बोलल, तारा नानू बुझाई। हम पूछतानी तो बताव ना, इलेक्शन काहे खातिर होला? हम कहनी सरकार बनावे खातिर। उ फिर पूछलस, आ सरकार काहे बनावल जाले? हम चुप हो गईनी, कहनी तू ठीक है कहता रह। वो पत्थल पर जरत लालटेन के मध्यम रोशनी में अपना देश के साफ साफ तस्वीर हमारे सामने आ गई। एक खातिर एक बेर जोर से ताली बजाई लोगी। तो भोजपुरी के नइखे चुकावल जा सकत, ई हमनी के मातृभाषा हो जौन माई के गोदी में सिखले बनी सन। बाकी प्रयास हम कैनी कि हमार नैतिक धर्म बा जे हम भोजपुरी में भी कुछ रचना करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब हमरा के सुननी, आए नयका लइकन के सुन के हम गदगद हो गईनी कि लोग इतना बढ़िया भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में, बज्जिका में वो तरह की रचना कर रहल बा, जौना के सुन के ये बुझाइल कि नयका पीढ़ी भी अपना भाषा के छोड़ले नहीं खे, वही तरह से लेके चल रहल बा जैसे हिंदी के लेके चल रहल बा। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो हास्य और व्यंग असल में वो विधा है जिसमें सामान्य रूप से व्यंग्य कहते हैं कि वक्ता मुस्कुराता है और श्रोता तिलमिलाता है, लेकिन सुनील कुमार तंग भैया की विधा वो है जिसमें वक्ता भी मुस्कुराता है और श्रोता खिलखिलाता है। तो भोजपुरी में इनके पास बहुत रचनाएं हैं। तो बार बार घड़ी देख रहे थे, हम भी घड़ी देख रहे थे, हम सब घड़ियां देख रहे हैं। 2 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला, 3 साढ़े 3 घंटे भी बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बीच कुछ नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि समय का प्रबंधन, जब विकास के प्रबंधन की ओर आपका ध्यान है तो समय के प्रबंधन की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से होगा। एक रचना के साथ अब सब मिक्स कर देते हैं, मिश्रा जी बना देते हैं। सुनिए इसको कि लिखे थे आपके लिए रवि भाई, सुनिएगा, खान पान से जुड़ा हुआ है, पता नहीं पिछली बार सुना पाए थे कि नहीं, कि सारे खत को, बिहारी फ्लेवर है, कि सारे खत को इस जाड़े में ताप गए, सारे खत को इस जाड़े में ताप गए, तन के मन के जितने थे संताप गए, और उपहारों को दान कर दिया जो सब उसने भेजे थे। दान कर्म का फल अद्भुत है, जो भी थे सब पाप गए, और एक अकेला खत रखा था जिस पर उसका नाम लिखा था। एक अकेला खत रखा था जिस पर उसका नाम लिखा था, उस खत पर भी तिलकुट चूड़ा मीठा रख के चाप गए। तो बेवफाई में प्रतिकार हम बिहारी इस तरह से भी दे सकते हैं कि खत पर तिलकुट चूड़ा मीठा रख के चाप लेंगे। ऐसी ही सकारात्मक बेवफाई के प्रतिकार की भावना के साथ और प्रेम के सकारात्मक भावना के साथ हम आप सबके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सबने भी हम कवियों को बहुत बड़ा मन का मंच दिया है। ये मंच इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मन तक हम इतनी देर में पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के श्रोताओं के बीच सुनने की शैली, ये एकमात्र विकास प्रबंधन संस्थान ही इस देश का इकलौता ऐसा संस्थान है जहां के नेतृत्वकर्ता आगे नहीं रहते, वो सबके बीच में रहते हैं। ये हम कवियों के लिए भी एक पहला अनुभव है। सर के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां पूरा मंच निदेशक महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। कविताओं का यह महोत्सव इतना भावपूर्ण और सुंदर रहा कि शब्द भी कम पड़ रहे हैं। यह काव्य संगम हमें सदा याद रहेगा। हमारे आदरणीय कवियों ने अपनी अमूल्य रचनाओं से इस शाम को अमर बना दिया। इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं प्रोफेसर गीतिका वर्षनेया मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे कवियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी गरिमा को सम्मानित। धन्यवाद सर। प्रिय श्रोतागण, आज की यह साहित्यिक यात्रा यहीं समाप्त होती है, परंतु कविताओं का जादू, कवियों की वाणी और आपकी सराहना हमारे दिलों में सदा गूंजती रहेंगी। आप सभी का हृदय से आभार। शुभ संध्या एवं धन्यवाद। Thank you, Prerna. And thank you so much to all the panelists, Satya Bhai, Kshitij Bhai, Sarvan Bhai, Nusrat ma'am, and to come to this particular platform. So what we will do is, we have approximately 1.5 hours. To 1.5 hours, mein, first round we'll try to stick around 10 to 15 minutes. And then again, how much time we have,
हम लोग सेकेंड राउंड पे कुछ आके डिस्कशन करते हैं। एंड द फोकस ऑफ दिस डिस्कशन विल बी कि जब हम नागरिक समाज बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, इंटेंशनली वी हैव चूजन दिस टॉपिक एज अ सिविल सोसाइटी एंड देयर रोल काइंड ऑफ अ थिंग। यस्टरडे वी हैव अ वन सेशन जहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड होते हैं, स्टार्टअप थे। एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप हु आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, जिनका की कंट्रीब्यूशन अगर हम जॉब मार्केट में भी देखें तो इक्वली गुड है। इनफैक्ट अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन मच बेटर है कंपेयर टू इंडस्ट्रीज, बट लेस सेलिब्रेटेड पाथ लगता है कभी कभी, ये उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो इंटेंशनली देयर वाज अ रीजन कि वन डे इफ वी हैव अ एंटरप्रेन्योरशिप which is a core kind of a thing for a development kind of a thing, then there is another is a development sector। तो उसके थ्रू देखें कि हम विकसित बिहार की क्या परिकल्पना कर सकते हैं, हमारे लिए विकसित बिहार क्या हो सकता है और उसमें क्या रोल निकल के आ सकता है सिविल सोसाइटीज़ का। तो इसमें फर्स्ट हम क्षितिज भाई से जानना चाहेंगे थोड़ा सा उनके जर्नी को फ्रॉम अ पेटीएम 1mg to coming to this happy horizon kind of a thing, and then again say करेगा वाउचर वेयर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का कारण करना, कि आपका ये शिफ्ट कैसे आया एंड कैसे एक इंडस्ट्री को छोड़ के जो अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है, एनजीओ अभी भी उतना बहुत ज़्यादा परसेप्शन में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, उस पर आगे भी आएंगे, ये जर्नी क्यों और कैसे रहा, क्या ट्रिगर किया, उस पर अगर आप थोड़ा फोकस करें। ऐसे ही 3 हम लोग बिहार के फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने सोचा कि यार बिहार में लोग स्टार्टअप क्यों नहीं करते हैं, राइट? उनकी विजन क्यों नहीं है कि मुझे बड़ी कंपनी बनानी है या फिर बड़ी सोशल एंटरप्राइज बनानी है, ये विजन की गैप क्यों है? तो हमने फिर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे मेंटर्स को लेकर के आए, बहुत सारे लोग को लेकर के आए, बहुत सारे फंडिंग लेकर के आए, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का ये विजन रहता है कि मेरे पास आइडिया है बट गाइडेंस नहीं है, आइडिया है गाइडेंस है बट मेरे पास फंडिंग नहीं है, आइडिया है गाइडेंस है फंडिंग नहीं है बट एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है। So we try to fill in those gaps, right? Creating role models are very important. We need to have role models, and there are role models, and there are potential to build those role models. What we do, we create role models. हमें नहीं पता है कि गांव बदलेगा कि नहीं, लोग बदलेंगे कि नहीं, लेकिन हर घर में अगर एक व्यक्ति बदलेगा तो वो पूरा गांव बदल जाएगा। That's a replication model we create. So we create those role models, put them into the basti, and through them we try to create a replication that if one can do, many can do. That's the idea of the entire initiative. To make equitable and inclusive Bihar, we must focus on the populations which has potential to bring change in the state, but their potentials are untapped. They are looking forward and they are there in the bastis, in the communities, everywhere they are there, but their potentials is not harvested yet. And I think this is in this phase, या आने वाले कुछ 10 साल तक अगर हमने इस यंग पॉपुलेशन की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको नर्चर करने के स्पेसेस क्रिएट कर लिए, तो मुझे लगता है कि हम एक विकसित बिहार की संकल्पना को देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। सोशल स्पेस बदल रहा है बिहार में। मैं यंग हूं फिर भी मैं बोलता हूं कि हाँ, अगर आप मेरे आंखों से देखेंगे तो बदल रहा है। इसका एक बड़ा एग्जांपल आपको इस टेबल पे दिखेगा, मेरे सामने भी बीडीसी से कुछ साथी हैं, उनसे दिखेगा। अगर आप हम लोग जब घुसे थे सोशल स्पेस में, उसके पहले अगर आप जमुई में प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड डेवलपमेंट फेलो था, अगर आप वहां पूछते कि कौन कौन लोग हैं जो एनजीओ या सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, सिविल सर्विसेज स्पेस में पैसा ही सरकार से आता था। मेन फंडर सिविल सर्विसेज स्पेस का 5 साल 6 साल पहले सरकार ही थी। तो जिससे लगता था कि मैं सरकार के साथ कर सकता हूं, वही इसमें घुसता था। सोशल सेक्टर में काम करता है, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता है, तो उसे अपना अच्छा लाइफ जीने का अधिकार ही खो देता है क्या, कि वो अधिकार है नहीं। तो ये हमारे लिए हमेशा एक रहता था कि इसमें भी क्या अगर हम खुद ही अच्छे लाइफ नहीं जी सकते तो हम दूसरे का लाइफ को अच्छा कर भी पाएंगे क्या? लोगों को लगता है कि इसमें काम कर रहे हैं तो हवा खा रहे हैं। तो आप इन भ्रांतियों के साथ जीते हैं ना, इन्हें तोड़ने की जरूरत है।
गरीबों के साथ काम करने के लिए आपको गरीब नहीं हो जाना है। कि हमें ये भ्रांति नहीं फैलानी है कि अगर आप इस स्पेस में आ रहे हैं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर, ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉम्पिटेंट स्पेस, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं इस स्पेस, और बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है। क्या डेवलपमेंट सेक्टर एज एन होल या फॉर दैट मैटर सोशल सेक्टर के कैरियर के लिए भी कुछ है क्या? वहाँ पे लर्निंग्स के लिए कुछ हो रहा है क्या, या कुछ एक्स्ट्रा करने का रिक्वायरमेंट है एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज, कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स को भी वो दिखे कि दिस इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर सेक्टर वे नीडेड टू वर्क, और वहाँ पे बेटर कैरियर ऑप्शन हो सकता है। पार्थ चैटर्जी को अगर आप कभी पढ़ोगे तो what he basically does, he talks about citizenry. And why are we talking about citizenry? Here we are concerned about Bihar. We are talking about India. So we have to understand that we cannot take the responsibility of each and every individual of this world. It's very difficult. Even if I say मैं पूरी दुनिया के लिए हूँ, but मैं क्या पूरी दुनिया के लिए हो सकती हूँ? It's very difficult. जिसके लिए हो सकती हूँ उसके लिए तो हूँ। तो citizens. So what he basically talks about two kinds of citizens that are present in any of the countries. One belongs to the political society and the other belongs to your civil society. जब हमें लगता है कि दायित्व आ गया है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये जो सेक्टर है तो क्या फ्री में चलता है? ये अवधारणा बहुत लोगों के बीच में है, जो कि गलत अवधारणा है, क्योंकि इस सेगमेंट में भी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अब आप एक बात होती है, आपको पैसा कब मिलेगा? क्या आप हैज़ार्ड वे में डेवलपमेंट करते हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो डू यू एक्सपेक्ट कि यू विल गेट सम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स एंड यू विल बी पेड फॉर इट? नो, you won't be getting concrete results, you won't be getting your productive results. For that production you need some streamlining, you need some organization, you need some structuralization. लेकिन जब ये समाज सेवा एक विजन, एक एम, एक टारगेट ग्रुप के साथ आने लगा, तो दिस थिंग वाज रियलाइज्ड कि इसको भी स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ एकेडेमिया। Academia is feeding you. Academia is deciding what person you will turn into after maybe 10 or 20 years. What the job market will be after 20-25 years. So, जो बच्चे नर्सरी में अभी एनरोल हो रहे हैं, उनको आज के बारे में नहीं पढ़ाना है, उनको 25 साल के बाद में पढ़ाना है। हम और आप ही अपना घर में क्या बिहेव करते हैं, उससे हम सिविल सोसाइटी का भी निर्माण करते हैं, उससे हम एकेडेमिया में भी आते हैं। एकेडेमिया में आइए, उसके सिलेबस को बदलिए, उसमें स्पेसिफिक आप कुछ एम रखिए, टारगेट रखिए। ये कौन करेगा? ये शायद स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, ये फैकल्टी मेंबर्स करेंगे। हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें वही घिसे पिटे मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से बाहर आने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस में स्टक नहीं होकर के हमें पब्लिक पॉलिसी पे जाने की जरूरत है। हमें पॉलिटिकल साइंस में स्टक नहीं होकर के सिविल सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग पे जाने की जरूरत है। Agree that it was definitely a highly enlightening session, है कि नहीं? So I thank all the panelists for the sharing their insights, their experience, their exposure, जिससे जब शुरुआत हुई थी प्रोफेसर सूर्यभूषण ने कहा था बिहार का मतलब, बिहार का मतलब जहाँ आके आप अपने सारे अहम दोष जो हैं आपके अंदर, जो बुराइयां हैं कहते हैं, आप छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा आज का जो डिस्कशन था कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव वे में हम सबको लेके जा रहा था, और हमें, मैं कह सकती हूँ कि हमें बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर कर रहा था। सो वन बाय वन आई थैंक मिस्टर क्षितिज आनंद, फाउंडर हैप्पी होराइजन ट्रस्ट। उन्होंने बहुत बखूबी बताया कि सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, it's very important to apply the learning. Thank you so much for sharing that insight and also for the calling. अगर बिहार में बदलाव लाना है, विकसित बिहार की परिकल्पना करनी है, तो वो बिहारियों से ही संभव है, उसके लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे। Thank you so much for that. I thank Mr. Satyendra K. Satya, National Convener, NYEF,
I mean, you emphasize diversity and inclusion are so much important. शायद हम बहुत ज़्यादा विकास कर लें, बट अगर वो विकास समावेशी ना है तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है. So thank you so much for emphasizing on that, the very important aspect of inclusion. I thank Mr. Shravan Jha, co-founder iSaksham. He is a friend of mine. I mean, you beautifully emphasized, I think there is a book, I mean, बाहर ढूंढने के पहले आपको understanding yourself. So you very beautifully emphasize कि खुद को जानिए. एक बार आप खुद को समझेंगे तो आप अपनी राह बना सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर में है या और कोई नई राह आप में भी you can pave a new pathway altogether. So बहुत अभी कर सकते हैं जब आप खुद को समझेंगे. So thank you so much for that. And there are a lot of career opportunities that are there in the civil society organizations. So thank you so much, and emphasizing on the professional aspects in CSO. Thank you so much, Shravan. I thank Dr. Nujhat Nazneen, steering committee member BDC. I mean, you again did a calling, and not just the calling for the individual, but for all of us who work in different sectors, like the CSOs, especially the academia, कि syllabus तक focus करना ज़रूरी नहीं है, something which me and Shravan were discussing also, that it's very, very important to integrate the life and the learning, So सिर्फ learning है, सिर्फ life है, दोनों अलग-अलग हैं, तो it won't make any sense. So it's very, very important to integrate the two and then take it together. So that's what I'm saying, the calling, that it is very, very important, and the ultimate thing, कि problems है, but do not look at the problem as a problem, but an opportunity. I mean, I work in the domain of disaster risk reduction, so we always say कि आपदा में अवसर ढूंढिए. So thank you so much to all of you, and I mean, I thank our Dean, Dr. Sankar Purve, so beautifully steering the panel discussion, और जिससे इतने सारे, वो कहते हैं समुद्र मंथन आप ही ने किया सर, मंथन में ये भागीदार थे, मंथन आप ही ने किया, so thank you so much for that, so that ये जो अमृत हमें मिला अलग-अलग तरह से, thank you so much for that. भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने वाले कवि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित संगीत नाट्य गबर की चोर. गबर की चोर एक सांगीतिक नाटक है. इसके लेखक हैं भिखारी ठाकुर एवं निर्देशक हैं डॉक्टर जैनेन्द्र दोस्त. इसकी भाषा भोजपुरी एवं हिंदी है. अवधि 90 मिनट है और दल का नाम है भिखारी ठाकुर रंगमंडल प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र, छपरा, बिहार. नाटक का सार. गबर की चोर नाटक भिखारी ठाकुर के सबसे चर्चित लोक संगीतिक नाटक है. नाटक की कहानी विस्थापित से जुड़ी समस्या से शुरू होती है, परंतु सबसे खास बात यह है कि यह नाटक स्त्री के अपने बेटे के अधिकार की वकालत करता स्त्री के विमर्श पर केंद्रित है. यह नाटक पुरुषवादी धारणाओं के ऊपर मातृत्व के पक्ष में खड़ा होता है. यह नाटक पूर्वांचल क्षेत्र के अनेक नृत्य और गायन शैलियों जैसे जांगी नृत्य, पूर्वी गीत, दोहा, चौपाई, विलाप गीत, निर्गुण गीत आदि शामिल किया गया है. भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के महान नाटककारों, कलाकारों में से एक रहे हैं. सन 1917 में अपने नाच नाटक दल की स्थापना कर भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में विदेशिया, गबर की चोर, बेटी बेचवा, पिया निसईन, विधवा विलाप, गंगा स्नान, जो कि बाढ़ के द्वारा उत्पन्न अनेक वेदनाओं को भी छूता है. भिखारी ठाकुर रंगमंडल प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र. भिखारी ठाकुर के रंगमंच, गीत, संगीत एवं नृत्य सहित बिहार के अन्य कलाओं की प्रस्तुति के व्यावसायिक रंगमंडल के साथ साथ उनके रंग परंपरा के प्रशिक्षण एवं शोध की संस्था है. भिखारी ठाकुर के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त एवं उनके दल में काम कर चुके सभी जीवित कलाकार आज इस रंगमंडल के विभिन्न अंग हैं. इस केंद्र ने भिखारी ठाकुर के रंगमंचीय परंपरा को संपूर्णता में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है.
तो प्रस्तुत है नाटक गबर की चोर। के प्रणाम करत आज हमने के रउआ लोग के भिखारी ठाकुर के तमाशा दिखावे जाता नहीं सब। अभी रउआ लोग देखनी है पूर्वांचल के एगो लोक संस्कृति जांघिया नृत्य। डीएमआई के हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करतानी कि आज हमने के भिखारी ठाकुर के सांगीतिक नाटक के दिखावे के मौका दिलक, आमंत्रित कैलक। शब्द नहीं है, बस यही कहूँगा शुक्रिया जो है आपके तीरे आने से कम, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रह जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप सभी को यहाँ उपस्थित होने और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारा धन्यवाद। अब कृपया सभी से निवेदन है कि खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल हों।